A very good morning, all of you, and a happy new year 2022, all my dear students and their respective families. This video is only for class 8 students, and in my last video, I already discussed about the topic related from the chapter 11, force and pressure, and I already discussed about the topic force and their respective summations, like effect of the force, unit of the force, types of force, and some numericals also. Today's our topic is pressure. Let's see. Pressure is denoted as capital P, and its formula becomes P is equal F divided by A, where F is force and A denoted as area. Then the definition of pressure becomes force per unit area is called pressure. Force per unit area is called the pressure. Next, unit of pressure. It will follows as from the formula P equals F divided by A, and the unit of the force is Newton. Unit of area becomes meter square, that already becomes Nm minus 2. Another unit of the pressure is Pascal. In short form, we will written as this, and in full form, pressure Pascal becomes like this, because Pascal is a SI unit of the pressure, and it will follow a scientist George Brazier Pascals. That's why the unit of the pressure becomes, in the short form, it will start as a capital letters, and in full form it will start as the small letters of the P. So pressure equals P equal F divided by A, force upon area. Force per unit area is called the pressure, and the unit of pressure becomes Newton per meter square, or it always denoted as Pascal in the short form of the P. Next, now from case first, we can say that from these equations, P directly proportional to the force. These symbols denote as directly proportional, which shows that if one quantity increases, then other quantity will also increase in the same manners. As force becomes 2 times, pressure will always increase, and it will becomes 2 times. If we reduce the force and it will becomes half, pressure will also decrease and will be half. From case second, we can say P inversely proportional to 1 by A. This means if one quantity increases, then other quantity will decrease in the same manners, in the same ratio, to remain the equation same. That means if the area of any surface increase and it will becomes 2 times, then pressure will decrease 1 by 2. Pressure will becomes 1 by 2, and it will be reduced half. If the surface area reduce and it will becomes half, then the pressure arises and becomes just double. So from these two equations, we can say that pressure is directly proportional to the force and pressure is inversely proportional to 1 by area. बेटा हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि केस फर्स्ट और केस सेकंड के हिसाब से देखा गया। केस फर्स्ट हमने बताया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मीन्स प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी हमारी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर उस क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। मतलब अगर हम फोर्स को जस्ट डबल कर रहे हैं, जस्ट ट्रिपल कर रहे हैं, तो प्रेशर भी हमारी डबल और ट्रिपल उसी के रेशियो में होती जाएगी। फोर्स को हम आधा कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, तो प्रेशर भी हमारा 1/2 एंड 1/3 होता चला जाएगा। केस सेकंड में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं
तो सेकंड क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे इक्वेशन का मैनर हमारा सेम बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुछ किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की एरिया को हम जस्ट ट्रिपल कर दें, तब प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया को हमने जस्ट बढ़ा करके 3 गुना कर दिया है, तो प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा। प्रेशर हमारा 1/3 टाइम्स बचेगा, प्रेशर हमारा घट जाएगा। यदि सरफेस एरिया को हम कम कर दें और सरफेस एरिया को पहले वाली सरफेस एरिया से हम आधी कर दें, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, प्रेशर उसी के रिस्पेक्ट में हमारा बढ़ जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area, इसका मतलब ये होता है। अब कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आते हैं। लाइक एज आपने देखा होगा दीवार में हम लोग जो कील लगाते हैं, needles, the edges of the needles will be very sharp. Needle has a sharp edges. needle की जो नोक होती है वो बहुत ही शार्प होती है। रीजन क्या होगा कि needle की जो एज है उसी को हम दीवार में लगाते हैं, कील जो आपकी है वो दीवार में लगाते हैं। और कील का शेप कैसा होता है बेटा, कील का शेप कुछ आपका इस तरीके से होता है, लाइक ऐसा। ये सिरा है, ये दीवार के अंदर जाता है और इस सिरे पे आप फोर्स लगाते हैं, हथौड़े के द्वारा या किसी सब्सटेंस के द्वारा आप इस पे फोर्स लगाते हैं, जिससे दीवार के अंदर कील जाती है। ये जो एजेस हैं जितना कम होगा, इसके सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा कम होगी, प्रेशर हम इस पे ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा और वर्क होगा वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है निडल हैज अ शार्प एजेस। एक एग्जांपल आपने और डेली लाइफ का देखा होगा, नाइफ आपने देखी होगी, नाइफ की जो एजेज होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और शार्प नाइफ से किसी भी चीज़ को काटना बहुत ज़्यादा आसान होता है कंपेयर देन ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ मीन्स जिसकी धार कुंद हो गई हो, जिसकी धार खराब हो गई हो। चाकू की धार होती है, जिस सब्सटेंस से जिस तरफ से हम कोई भी चीज़ काट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चाकू की धार बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वाई इट इज ईजियर टू कट एनी सब्सटेंस विथ अ शार्प नाइफ कंपेयर देन द ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ की अपेक्षा, ब्लंट नाइफ की अपेक्षा शार्प नाइफ से किसी चीज़ को कट करना आसान क्यों होता है। रीजन आपका ये होगा कि शार्प नाइफ की एजेज बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, सरफेस एरिया उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। जितनी कम सरफेस एरिया होगी, प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, हमारा वर्क उतना ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ को काटने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि आपने ऑलरेडी महसूस किया है, किसी भी सब्सटेंस पर जब हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, फोर्स हमने ज़्यादा अप्लाई किया तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी सब्सटेंस पर काम करने में हमें आसानी होगी। मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन हमारा जो बना, हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं। Why it is easier to cut any object with a sharp knife compare than blunt knife, क्वेश्चन मार्क। शार्प नाइफ से किसी भी चीज़ को कट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका कुछ इस मैनर में होगा, बिकॉज शार्प नाइफ हैव sharp edges, it means surface area of edges of
sharp knife will be less. That's why pressure applied by sharp knife is much greater. ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। शार्प नाइफ की एजेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ द एजेस ऑफ द शार्प नाइफ विल बी वेरी लेस। शार्प नाइफ की सरफेस एरिया क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। इसका मतलब ये होगा, दैट्स वाई प्रेशर अप्लाइड बाय द शार्प नाइफ बिकम्स मच ग्रेटर। और शार्प नाइफ के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक इसके डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स और भी देख लें। आप अपने स्कूल बैग अच्छा लगता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपका बनेगा, आपकी बुक में जो दिया गया, प्रेशर इन द फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो। देन व्हाट इज द टर्म्स ऑफ द फ्लूइड्स? फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड्स हम लोग बोलेंगे एनीथिंग्स व्हिच फ्लो इजीली। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो हो सके हम उसको फ्लूइड्स का नाम देंगे। ऑल टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स आर द फ्लूइड्स। तो अब जरा एक एग्जांपल लें। जैसे सपोज करें आपने एक बड़ी सी बाल्टी लिया, बड़ा सा टब लिया और इसमें पूरी तरीके से आपने पानी फिलअप कर दिया है। अब आप एक बैलून लेकर के इसके अंदर डालने की कोशिश करें। बैलून में आपने एयर भरा हुआ है और बैलून को आप पानी के अंदर डालें। आप देखेंगे जब तक बैलून पानी के अंदर रहेगा, इन केस सेकेंड दूसरे तरीके से समझें, जब तक आपका हाथ बैलून के ऊपर रहेगा, जब तक आप अपने हाथ से बैलून को अंदर डाले रहेंगे, बैलून पानी के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे अपने हाथ को आपने रिमूव किया, बैलून पानी के ऊपर आ जाएगा। बैलून में एयर भरी हुई है, मीन्स जब तक आपने अपने हाथ से पुश किया बैलून को पानी के अंदर की तरफ, बाल्टी या टब के अंदर की तरफ आपने पुश किया हुआ है, बैलून पानी के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे आपने अपने हाथ को हटाया, बैलून पानी के सरफेस पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने अपने हाथ से बैलून को पानी के अंदर पुश किया था तो आपने एक फोर्स अप्लाई किया था बैलून पर नीचे की तरफ। अब फोर्स विल अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द वेट ऑफ द बैलून्स, and another force when you remove your hands, balloon will rises up. This means another force applied by the water in the upward direction, and this force is known as the buoyant force or the upthrust force. These types of force you will lead in earlier classes, in upper classes like as a class 9th. तो बेटा आपने बैलून पर फोर्स अप्लाई किया नीचे की तरफ, बैलून से जैसे अपने हाथ को हटाया, वाटर ने बैलून पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। क्या दो ही फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स और भी लगते हैं। इन कंटेनिंग वेसल्स के साइड वॉल्स के द्वारा इस बैलून पर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होगा। मीन से कह सकते हैं साइड वॉल के द्वारा भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो बैलून पे चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। और आपने पढ़ा हुआ है फोर्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मीन से उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर दे रहे हैं। और अगर बैलून पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बैलून पे प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ बैलून वहां वाटर में प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। राइट। एक अदर एग्जांपल देखें। मान लीजिए बैलून को आपने हटा दिया और इसको पूरी तरीके से आपने वाटर से फिलअप किया हुआ है। अब आप एक बार अपर डायरेक्शन से, अपर पार्ट से, इस कंटेनिंग वेसल्स के अपर पार्ट में थोड़ा सा होल कर दें। इस तरफ सपोज करें आपने होल कर दिया, तो जैसे ही आप होल करेंगे, चूंकि पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था, तो वाटर बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, वाटर कम्स आउट। लेकिन जो पानी बाहर गिर रहा है, इसकी इंटेंसिटी को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पानी लो प्रेशर के द्वारा बाहर आ रहा है। पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेकिन
दूसरी तरफ एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करें। मान लीजिए अपर डायरेक्शन में होल ना करके अपने लोअर सेक्शन में होल कर दिया, तो जैसे आप लोअर सेक्शन में होल करेंगे आप देखेंगे पानी का प्रेशर क्या हो गया, अब बढ़ गया। पानी कुछ ज़्यादा प्रेशर के द्वारा पानी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। इसका रीजन ये होगा कि जब आपने अपर डायरेक्शन में थोड़ा सा होल बनाया था उस समय इसकी एरिया को ज़्यादा थी, इतनी एरिया कवर कर रहा था, और ज़्यादा एरिया होने की वजह से प्रेशर कम हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ P प्रोपोर्शनल टू 1/A। एज एरिया इंक्रीजेस प्रेशर भी रिड्यूस। एरिया ज़्यादा होने की वजह से, इस समय एरिया ज़्यादा थी, जब हमने यहाँ पे होल किया था एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कम प्रेशर से पानी बाहर की तरफ गिर रहा था। लेकिन जब आपने नीचे लोअर बॉटम साइड में अपने होल बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल इतनी एरिया इसको मिल रही है, इतनी एरिया केवल मिल रही। कम एरिया मिलने की वजह से एरिया जैसे ही कम हुआ पानी का पूरा फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा लगने लगा, पानी का प्रेशर ज़्यादा लगने लगा, और ज़्यादा प्रेशर के द्वारा पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो गया। ये आपका बनता है प्रेशर इन द फ्लूइड्स। आपने एक एग्जाम्पल्स और भी देखा होगा, आपकी बुक में लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसी सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है, सभी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई होता है। और जैसे हम अर्थ सरफेस से अपर डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, एज वी गो अप हायर द प्रेशर विल डिक्रीज। जैसे से हमारी हाइट बढ़ती जाती है, जैसे से हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्रेशर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। प्रेशर जितना कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से ही आपने सुना होगा जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ऊपर जाते हैं। रीजन ये होगा कि प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो कह सकते हैं एज वी गो अप हायर प्रेशर विल बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स वेरी लेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। राइट, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रेशर के। सपोज क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ, कैलकुलेट प्रेशर if 20 Newton of force applied on an object having surface area of 40 Pascal, sorry, surface area of 40 मीटर स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर इफ 20 न्यूटन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग सरफेस एरिया 40 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट नोट करने की कोशिश करेंगे। 20 न्यूटन ऑफ द फोर्स, इस क्वेश्चन में आपका गिवन है फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू 20 न्यूटन। सरफेस एरिया 40 मीटर स्क्वायर मीन्स सरफेस एरिया कैपिटल A is given 40 मीटर स्क्वायर। Here calculate the force, calculate the pressure, pressure will ask। फॉर्मूला बनेगा प्रेशर का P इक्वल F डिवाइडेड बाई A, दैट मीन्स फोर्स बिकम्स 20, एरिया बिकम्स 40 मीटर स्क्वायर, इट विल बिकम्स 20 into 40 1/2। सो प्रेशर इक्वल्स 0.5 पास्कल, राइट। प्रेशर आपका बेटा हो जाएगा 0.5 पास्कल। क्लियर है, अच्छे से नोट कर लें। आइए क्वेश्चन और किया जाए।
से करें, कैलकुलेट amount of force applied on an object having surface area of 10 meters square which experience 40 Pascal pressure. Calculate the amount of force applied on an object having surface area of 10 meters square which experience 40 बेटा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर व्हिच एक्सपीरियंस 40 पास्कल प्रेशर। तो सबसे पहले गिवन दैट नोट करने की कोशिश करें। गिवन दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स आपको निकालना है, सरफेस एरिया दी गई 10 मीटर स्क्वायर, प्रेशर आपका गिवन है 40 पास्कल। फॉर्मूला होता है P इक्वल एफ डिवाइडेड बाई ए। हमसे एफ पूछा गया, मतलब एरिया को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे। एरिया चूंकि यहाँ पे डिवाइड के टर्म्स में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स एफ इक्वल्स पी इंटू ए, राइट। एफ कैलकुलेट करना है तो एफ बराबर पी की वैल्यू आपकी 40 दी गई, सरफेस एरिया 10 दिया हुआ है, फोर्स आपका बन गया 400 न्यूटन, राइट। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बस आप गिवन दैट नोट कर लें। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुटअप कर दें, कैलकुलेशन आपको आता ही है, आप मैथ के स्टूडेंट तो है ही, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रेशर टॉपिक यहाँ पे कोई तरीके से समाप्त होता है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much. Have a nice day.